Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and this is the second part to our show. Just before the break we had a caller was inquiring about their grandmother who had come over to the United Kingdom on a visit visa and had then made an application to extend after her health had deteriorated. Unfortunately, even after an appeal to the Immigration Tribunal, the application to stay here was unsuccessful, and the query related to what she should do now. And in particular, the Home Office is considering whether she's able to return back to her home country, which from my recollection is Bangladesh, and whether anything should be done in terms of chasing the Home Office up. Now, basically the position is that at this stage nothing should be done in order to chase the Home Office up. The longer the period that elapses, that passes, it will be better for your grandmother. And even after a couple of months, if the Home Office were to come back to you, what they would normally do is say, we want to look at her medical records, etc. If you can supply medical evidence that she is unable to travel, then it will be very difficult for them to do anything in order to return your grandma back to Bangladesh. So you need to stick to your current position, which is that she is unable to travel with or without the carer. I think that's what you were saying. If that's the case, it would be very difficult for the Home Office to do anything in order to return your grandma to Bangladesh. So hopefully she would be able to stay here. So thank you very much for that call. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Hello, ji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam ji. Sorry for if I have to hold. जी जी भाई, what's your question? जी अनवर बात कर रहा हूँ लंदन से. जी अनवर भाई जी. हमारा लास्ट ईयर इंडेफिनेट हो गया था. मैं एंटरप्रेन्योर वीजे पे आया था पाकिस्तान से. जी ओके. तो लास्ट ईयर जनवरी में हो गया था. तो अब मुझे इस साल में अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है. एक साल हो गया हमें. अच्छा, मुझे 5 years बिफोर मुझे 3 पॉइंट लगे थे सिग्नल के ऊपर. ओके. तो क्या वो वेव हो चुके हैं वैसे तो? जी. तो क्या उसको मेंशन करना जरूरी है एप्लीकेशन में? उसको माय व्यू जनरली इज के वो मेंशन कर लेना चाहिए, मगर इट वोंट इफेक्ट योर एप्लीकेशन. वैसे तो वो 3 पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं. 3 पॉइंट्स को वो इग्नोर करते हैं, स्पेशली वे जो नॉर्मली होता है 3 पॉइंट्स में कि कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वो आपको बाय पोस्ट ही वो कहते हैं कि डिड यू एक्सेप्ट फिक्स पेनल्टी, तो आपको 3 पॉइंट्स वो दे देते हैं. आपको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वो तो इग्नोर ही करते हैं वो जनरली. सो ये तो मुझे वैसे एक लॉयर ने कहा था कि आप मेंशन ना भी करें क्योंकि वो ऑलरेडी वेव हो चुके हैं आपके ऊपर. इट डजंट मैटर. माय व्यू जनरली इज के माइनर ट्रैफिक ऑफेंसेस भी वो मेंशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. बिकॉज generally it's better just to mention it, मगर there will be no problems whatsoever. आप mention करेंगे तब भी कोई problem नहीं है इसमें, because the first reason is this कि out of court जो traffic offences जो settle होते हैं by way of 3 points and the 50-60 pound fine या 100 pound fine, they are not counted anyway. So इससे कोई फर्क नहीं. अगर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और वहाँ से वो पॉइंट्स देते हैं, तब भी वो फाइन का जो रूल है ना कि आफ्टर आई थिंक 2 के 3 years, आई हैवंट गॉट द गाइडेंस हियर, इवन आफ्टर 3 years वो फाइन हैज़ नो बेयरिंग ऑन द एप्लीकेशन एनीवे. सो विच एवर वे यू लुक एट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए. मगर जनरल टर्म्स आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी है वो उसको मेंशन कर दे. दे विल लुक एट इट एंड डिस्काउंट इट सेइंग कि इट्स नॉट रेलेवेंट एनीवे. सो इससे बेस्ट जस्ट टू मेंशन इट एंड नथिंग विल हैपन एनीवे. अच्छा, दूसरा ये था कि मेरी बेटी जो थी मेरे साथ आई थी. वो उस वक्त उसकी एज 18 नहीं थी, लेकिन इंडेफिनेट के बाद उसकी 18 होगी. तो क्या उसको लाइफ इन यूके का टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना होगा जब वो यहाँ पे ए लेवल कर रही है? नहीं, उसको करना पड़ेगा बिकॉज शी इज ओवर द एज ऑफ 18. बोथ रिक्वायरमेंट्स उसको मीट करना पड़ेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है द B1 इन इंग्लिश, वो भी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. एंड सेकेंडली लाइफ इन द यूके टेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल में जो क्वालिफिकेशंस मिलते हैं GCSE इन इंग्लिश, A लेवल इन इंग्लिश, वो क्वालिफिकेशंस से वो एग्जेम्पशन नहीं मिलता. अपना वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट का एग्जेम्पशन नहीं मिलता, सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट से मिलता है इंग्लिश से एग्जेम्पशन. बट इन एनी इवेंट वो तो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है. लाइफ इन द यूके का तो वो सेपरेट रिक्वायरमेंट है, वो तो करना ही पड़ता है.
मगर in your daughter's case, because अभी तक obviously she hasn't done the degree, तो उसको दोनों करने पड़ेंगे, B1 in English and then also the life in the UK test. If she was under 18 तो ज़रूरत नहीं थी, मगर because she is now over 18, उसका application का process भी different होता है, because she is over 18 तो उसको करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. अच्छा, दूसरा ये कि हम अपने ये पासपोर्ट अपने कौंसिल में सबमिट कर दें, वो कर सकते हैं. हाँ, वो इजी है. कर सकते हैं उसके बाद जी 100% कर सकते हैं जी. वो आप जो पासपोर्ट है आप ट्रैवल भी कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग द नेशनलिटी एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवल कर सकते हैं आप. और जनरली कितना पीरियड लग रहा है वैसे आजकल नेशनलिटी एप्लीकेशन नेचुरलाइजेशन में? जी, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेसिंग टाइम्स आर रफली 4 to 5 months at the moment. About 5 months. About 5 months is a good indication at the moment for naturalization. फिर उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट बनाने में और 2 months लगते हैं. So all in all, roughly about 7 months to 8 months to get the British passport. अच्छा, मैं एक सवाल और था कि मैं ये अपना बिजनेस अभी वही शो करूं कि जो ऑलरेडी कर रहा था मैं? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप बिजनेस शो करो न करो, एम्प्लॉयड हो अनएम्प्लॉयड हो, नेशनलिटी एप्लीकेशन में बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है. So it doesn't matter. और चारों हम एप्लीकेशन साथ दें जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं जो उस वक्त थे, अंडर 18 सेम टाइम अप्लाई करें? हाँ, अंडर 18 के जो डिपेंडेंट्स है ना, तो बेस्ट कि वो भी आपके साथ स्ट्रेट सेम टाइम पे अप्लाई कर ले एज अ फैमिली एप्लीकेशन. आपको इजी वो प्रोसेस हो जाएगा सबका. मगर जो ओवर 18 है तो ऑब्वियसली उसके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज द एप्लीकेशन इज़ एन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन. सो उससे कोई रूल्स में फ़र्क नहीं पड़ता है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. थैंक यू वेरी मच. विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग. जी भाई, आपका क्वेश्चन क्या है? सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी वाइफ के बिहाफ पे अप्लाई किया था. जी. तो 2015 में जो उनसे आया कि वो उन्होंने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की. तो मेरी वाइफ भी डिसेबिलिटी पे थी जी. अब स्टिल डिसेबिलिटी पे है. तो रिफ्यूज़ किया मुझे. अगले दिन रात, एक दिन पहले रिफ्यूज़ किया, अगले दिन वो मुझे इधर से घर से ले गए. ओके, ठीक है. मैं चला गया, टेंशन में चला गया. उसके बाद उन्होंने मैंने साइलम डाल दिया. जी जी. मुझे कोई अपनी उधर कंट्री में प्रॉब्लम्स थी. जी. तो उसके बाद मैं बाहर आ गया. बाहर आने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ. जी. उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मगर अपील का राइट दे दिया. जी, समझ गए. जी, चले गए. जी. कोर्ट में गए, उधर से भी अपील का राइट मिल गया. उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया. जी. जी. अब हम अपर ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं. जी. तो अपर ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, तो अभी उनका लेटर आया मुझे ना. जी. वो ये कह रहे हैं कि अपना कोई एनी आईडी, एनी लाइटर, एनी फैमिली से कोई रिलेशन, अपना लेटर वेटर हो, जो कॉन्सपोर्टेंस हो, कोई टीवी, अपना कोई कार, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, तो लेकर तो इंटरव्यू पे बुला लिया उन्होंने मुझे. ओके. आपने नहीं, ये तो सेपरेट है ना, ये तो होम ऑफिस वाले ने आपको इंटरव्यू में बुलाया. अपर ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, मगर होम ऑफिस ने आपको बुलाया है. जी, समझ गया मैं. जी जी. जी. वो तो आपकी पासपोर्ट बनाने के लिए, पाकिस्तान के लिए. अच्छा. जी, वो उसका पर्पस है. जो आपका केस ऐसा चल रहा है, वो आपको बुलाया है कि आईडी डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो वो उसका रीज़न ये है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी से आपकी पासपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो वो पाकिस्तान एम्बेसी को बताएंगे कि ये आपका ही आदमी है, उसका ये प्रूफ है, पासपोर्ट देखो, बर्थ सर्टिफिकेट्स देखो, स्कूल की सर्टिफिकेट्स देखो, तो आप उसकी पासपोर्ट बनाओ. वो पासपोर्ट बनाने की जो इंटरव्यू होता है ना जी, वो है. जी जी. तो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए कि क्या होगा. मगर जनरली आपका पोजीशन में ये है कि अगर ब्रिटिश चाइल्ड है तो आपको वीज़ा देंगे. ब्रिटिश चाइल्ड के बगैर ओवरस्टे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ कुछ करने का. जी. विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल वेरी क्विकली. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. Gee, we're very short of time. We've got literally about 60 seconds left. So please fire away with your questions. I'll try and answer it, please. Okay, no problem. I will. Yeah. Yep. Okay. Shall I do it now? Yep. If you can do it very quickly, I'll give you a quick answer. If you can do that now. Yep. Oh, sorry. I'm on air. Okay. You are live on it. You are live on air. Yeah. Okay. Just a quick one, actually. So I moved to the UK with my family 7 years ago. Okay. I'm on tier 2
I'm on tier 2 ICT visa, Okay. so I came to a company. Yep. So I work for IT company. Sure. It's been 7 years now. Okay. We want to basically go for the PR. Yep. As I understand, I think it's a long route of 10 years with non-residency. Yep. You complete 10 years. Apart from that, is there any other route for me? It's very difficult because even under the ICT visa, only certain people are able to extend their visa depending on the date that you came to the UK. Now, I think from the ICT visa, one of the few categories that you can go into is a student visa. So it's very difficult to go into any of the routes. What I will do is, this is a slightly complicated question, but something that I've looked at recently. What I will do is look at this in greater detail. If you give us a ring next week on Monday at 6 o'clock, I'll give you a more detailed answer on that. But before that, I'll come up with your options, inshallah, and have a discussion with you next week on Monday at 6 o'clock. But it's quite a detailed question or a detailed answer that's required to that. That unfortunately does bring us to the end of the show. Next week we'll carry on with the topic that we'd started about extension applications. But until then, Assalamu alaikum, and we'll be back inshallah next week on Monday at 6 o'clock.